the air and on the land, and the Indian Navy, Indian Army, and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here, that India is a secular nation
and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargoda, Jacobabad, and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, two military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. तो ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्रालय की ये विशेष प्रेस ब्रीफिंग को आपने सुना, जिसमें कई अहम जानकारियां एक बार फिर दी गई हैं। पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमने जिम्मेदारी से काम किया, ये रक्षा मंत्रालय ने कहा है। पाकिस्तान ने कई बार झूठ बोला, पाकिस्तान का झूठ उजागर किया है सेना ने लगातार। भारत ने हमले में मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया, कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को भी ध्वस्त किया है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श, एक बड़ी खबर, और जिस तरह से पूरा जो प्रकरण चला करीब एक सप्ताह तक, 22 तारीख से पहले भी और 22 तारीख के बाद भी, अब आखिरकार संघर्ष विराम हुआ है और सेना ने भी साफ कर दिया है कि तैयारी हमारी आगे भी बरकरार रहेगी। देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो जो है लगातार भारत पर हमला कर रहा था, और उसके बाद में जो भारत का रिटेलिएशन प्रोसेस देखने को मिलता हुआ नजर आया, वो जो है पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो है कई प्रकार का रिटेलिएशन किया, जिसमें पाकिस्तान के जो कई एयरबेस है उनको नुकसान जो है वो भारत की तरफ से जो है पहुंचाया गया है। भारत ने बिल्कुल भी जो आम सिविलियंस है, जिस तरीके से पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पे हमला कर रहा था, उस तरीके का हमला नहीं किया। पाकिस्तान पर जो है केवल जो उनके एयरबेस है उनको जो है नुकसान पहुंचाया गया, और उसके साथ साथ कई प्रकार के झूठ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह से ही बोले जा रहे थे। मसलन की जो एयरबेस है वो भारत के नुकसान जो है पहुंचा रहा है। इसको लेकर एक बार फिर से जो है जो पीसी रही है रक्षा मंत्रालय की, उसकी तरफ से बताया गया कि किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो भारत में नहीं हुआ है। पाकिस्तान के जो तमाम ड्रोन और मिसाइल थे उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का जो काम है
है वो जो है सेना की तरफ से जो है किया गया। और उसके साथ साथ ये भी सेना की तरफ से कहा गया कि अगर आगे भी किसी प्रकार की इसी प्रकार की अगर स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आती है तो भारत की जो सेना है वो पूरी तरीके से जो है भारत को सुरक्षित रखने में सक्षम है और पूरी तरीके से जो जवाब देने में वो भी जो है सक्षम है। स्पष्ट साफ तौर पर जो इस पूरा ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चला है, इसमें नजर आ रहा है कि भारत के लिए चारों तरफ उपलब्धि है, फिर चाहे आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना हो और उसके बाद पलटवार की कार्रवाई में पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना हो। यानी भारत का जो गोल था, जो मकसद था, वो भी कहीं ना कहीं पूरा हुआ है कि आतंकवाद पर चोट से लेकर अगर पाकिस्तान की सेना बेहद अनप्रोफेशनल जो है अगर वो दुस्साहस करती है तो जवाब दिया जाएगा, दिया गया है। यानी भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि भरा रहा है पूरा ऑपरेशन सिंदूर। देखिए बिल्कुल भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर बड़ा उपलब्धि भरा रहा है। 100 के ऊपर जो आतंकी है उनको मार गिराने का काम भारत की तरफ से किया गया है। पहले दिन यानी 7 मई की बात करते हैं तो करीब 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे, उनको जो है भारत की तरफ से जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है नेस्तनाबूद किया गया। और उसमें भी कई जो 5 बड़े आतंकी थे जो कि जो है IC 814 यानी कंधार कांड के भी वांछित थे, उनको भी जो है मार गिराया गया है। और इसी तरीके से लश्कर तैयबा के, जैशे मोहम्मद के जो आतंकी थे उनको जो है मार गिराया गया। और उसके बाद से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था। जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है वो देखने को मिल रही थी, ड्रोन, मिसाइल, ये तमाम चीजें पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी। लेकिन आज हमने देखा कि किस तरीके से लगभग 3:35 पर जो पाकिस्तानी DGMO है उनकी तरफ से जो कॉल है वो भारत को जो है किया गया। और उसमें ये जो शांति का प्रस्ताव यानी जो सीज फायर का प्रस्ताव है वो रखा गया। और उसके बाद में दोनों देश इस पर जो है कहीं ना कहीं आम सहमति बनाते हुए जो है नजर आए। तो भारत के लिए इस जो पूरा वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिलता नजर आया उसमें कई सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण रही है। मसलन की अगर पाकिस्तान किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेगा इसी तरीके से ड्रोन या मिसाइल के जरिए, तो भारत के पास पूरी तरीके से सक्षमता है पाकिस्तान के हर तरीके के जो अटैक है उनको जवाब देने की। स्पर्श, अगर देखा जाए तो अभी किस तरह की बैठकें दिल्ली में चल रही हैं, क्या इसे लेकर किसी तरह की जानकारी है? क्योंकि भले ही पाकिस्तान से संघर्ष विराम हो गया हो लेकिन आतंकवाद से समझौता भारत कभी नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने भी ये बात साफ कर दी है। और जब दोपहर में खबर सामने आई कि भारत में आतंकवादी कोई भी घटना पाकिस्तान द्वारा होती है तो वो एक्ट ऑफ टेरर होगा और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो युद्ध के स्तर पर होगी, वो युद्ध का एक तरह से उद्घोष होगा। तो अभी किस तरह की तैयारियां हैं या फिर किस तरह की चर्चाएं अब दिल्ली में हैं? देखिए हमने ये देखा कि आज सुबह से ही या फिर कहें कि कल देर रात से ही लगातार बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा था। प्रधानमंत्री आवास पर जो तीनों सेनाओं के प्रमुख है, इसके अलावा रक्षा मंत्री, CDS, NSA, ये तमाम लोग बैठकें कर रहे थे। और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को किस तरीके से और करारा जवाब दिया जा सकता है इसको लेकर जो बातचीत है वो लगातार जो है चल रही थी। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया या फिर जो विदेश मंत्रालय की PC थी उसकी तरफ से भी कहा गया कि पूरी तरीके से अभी जो सीज फायर है उस पर आम सहमति बन गई है। तो फिलहाल जो बैठकें हैं वो अभी जो है दिल्ली में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो रक्षा मंत्री है वो जो है आने वाले समय में एक पूरी ब्रीफिंग जो है इसमें लेते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से पूरा जो ऑपरेशन रहा है या फिर 2-3 दिन जिस तरीके के हालात रहे हैं वो कैसे रहे हैं, कहीं पर अगर भारत की कोई कमजोर कड़ी है तो उनको और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। और इन फ्यूचर जिस तरीके से भारत ने पहले ही कह दिया है कि अगर किसी प्रकार का आतंकी हमला भारत के ऊपर किया जाएगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह जो है लिया जाएगा, तो उसको किस तरीके से जो है और मजबूती के साथ जवाब देने के लिए तैयार किया जा सकता है। ऐसी तमाम चीजें जो है आने वाले समय में डिस्कशन के एजेंडे के तौर पर रहेंगी। बिल्कुल स्पष्ट। और एक तरह से भारत की काबिलियत और भारत की क्षमताओं को भी पूरी दुनिया ने देखा है, किस तरह पाकिस्तान को सिर्फ 48 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार गिड़गड़ाता हुआ पाकिस्तान अमेरिका पहुंचा सीज फायर के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर एक बड़ी चोट है। और भारत की जो नई शक्ति, उभरती हुई शक्ति है, खासतौर पर पिन पॉइंटेड तरीके से टारगेट करना हो, चुनिंदा टारगेट करना हो
और अगर कोई कार्रवाई करता है पाकिस्तान का सेना की तरफ से तो उस पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ये शक्ति भी पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने देख ली है अब। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान है उसने भारत की शक्ति देखी, और भारत की शक्ति न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया ने भी देखी। भारत ने जितने भी डिप्लोमेटिक रिश्ते थे उनको जो है फोन करके बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है जो एक आतंक स्पॉन्सर्ड देश है, और उसकी तरफ से ही जो है जो मासूम भारत के थे 26 उनको जो है कत्ल जो है किया गया आतंकी हमले में। और उसके बाद जो भी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है वो केवल आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई है। जो पाकिस्तान तरह तरह के प्रोपेगेंडा जो है फैला रहा था कि मस्जिदों के ऊपर जो है कार्रवाई की गई, उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई कि केवल जो मिलिट्री या फिर आतंकी ठिकाने थे उन्हीं को जो है तबाह करने का काम जो है वो भारत की तरफ से जो है किया गया। इस बीच हमने देखा कि अलग अलग तरीके से पाकिस्तान जो है देशों से जो है ये भी कहता हुआ नजर आया कि उनको और पैसे की जो है जरूरत है। इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हुई, या फिर कहीं यूएस के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में यह बता दिया पहले दिन ही कि अगर कोई भारत के ऊपर एस्केलेशन करेगा तो भारत उसी तरीके से जो जवाब है वो देना जो है जानता है। लेकिन ये कितना लंबा खिंच जाता ये किसी को नहीं पता था। और कल जिस तरीके से यूएस इंटरवेंशन देखने को मिलता हुआ नजर आया, डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी भी दी, और उसके साथ साथ जो यूएस सेक्रेटरी है उन्होंने भी जानकारी दी कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, उनकी तरफ से जो बातचीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो सेना के अध्यक्ष है जनरल मुनीर, उनके साथ में जो है की गई थी। और उसके बाद में जो डीजीएमओ है उनका कॉल भारत को आता है लगभग आज दोपहर 3:30 बजे के आसपास, और उसके बाद ये आम सहमति बनती है कि अब 5 बजे से जो सीज फायर है वो पूरी तरीके से लागू देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, ताजा जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता